So guys, hello, welcome to RSG classes. So as you can see कि हमारा पिछला इंटरव्यू जो रहा था वो मेघा सरिन के साथ रहा था. शी वॉज फ्रॉम मैत्री एंड मास्टर्स फ्रॉम मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. काफ़ी स्टूडेंट मुझे बोलते हैं सर दिल्ली स्कूल ISI तो आप बात करते हो, बट GIP वालों से भी बात करो. तो आप देख सकते हैं मेरे साथ आज अंबिका आनंद है. सो अंबिका भी हमारी स्टूडेंट रह चुकी है. अंबिका 17-18 से 21 बैच. एंड सो आज अंबिका से काफ़ी बातें करेंगे GIP को लेके. GIP के बाद की प्लेसमेंट कैसी रही, क्या वर्क कर चाहे, कैसा सब कुछ रहा, अंबिका से बात करेंगे. सो अंबिका, थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए. सो अंबिका, एक छोटा सा लिटिल बिट ऑफ इंट्रोडक्शन अगर आप अपना दे दो तो सबको पता लग जाएगा आपके बारे में. Okay, so hi everyone. My name is Ambika Anand. I have completed my bachelor's in economics from Sri Venkateswara College, University of Delhi, and then I went on to do my master's in economics in general economics from Gokhale Institute of Politics and Economics, Pune. And post that, now I'm currently working as data analyst in the focused analytics solution team at JP Morgan Chase. So that's about myself, and I joined Rahul sir in my graduation. And as in the last lecture, you must have heard, he has been our savior. So thank you so much, sir. सो अंबिका, मैं सबसे पहला मेरा क्वेश्चन, ग्रेजुएशन चाहे वेंकी हो, SR हो, हिंदू मोतीलाल हो, ठीक है, सबका ऑलमोस्ट एक जैसा ही रहता है. सारे के सारे तुम मेरे साथ सेम 1 से लेके सेम 4 तक अटैच ही थे इन एनी हाउ, MME, स्टैटिस्टिक्स, इकोनोमेट्रिक्स लेके. बट GIP में लाइफ कैसी थी, मैं ये जानना चाहता हूँ. हाउ इज द करिकुलम ऑफ GIP, कैसा कैसा रहता है. मतलब सब लोग सिर्फ DSC ISI का हवा लेके चलते हैं, बट हाउ इज GIP, मैं ये तेरे से सुनना चाहता हूँ एक्चुअली अबाउट GIP. Okay, so first of all, sir, thank you for giving me this platform to talk about it, because मैं भी उस situation में थी जब मैं ये सिर्फ DSC और ISI सुन रही थी, और मुझे ऐसा लगता था if you don't get into these two institutions तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी. And maybe yes, because it has a great brand value, और मेरा भी DSC मेरा बहुत कम मार्जिन से छूट गया था. But for all those who want to have a mix of both quantitative and theoretical aspect, I think Gokhale is one of the best options. Okay. And one thing that I like about Gokhale that really made me think I made a good choice was the curriculum is very different now. They have moved on to a practical curriculum. So I'll give you an instance by when I started in my first semester, I had statistics. And as you know, हमारा इसमें भी DU में भी होता है, but it is all theoretical. You do numericals and all. But in Gokhale, you don't do numericals and all. You do statistics on R. Okay. So in the first semester itself, you start with working on R. They give you modules. And the teacher is great. So we had Prabhu sir, so he used to make us work on modules side by side on our screens, not even making notes. You work on screens. So from there, you have a good base of softwares. Because as you move ahead, you see that pen paper se zyada, you work on your softwares. So we had, and even in our exams, we were supposed to send our R files to them instead of writing answers. And also in the first semester in statistics, first half is statistics, second is operational research. So there also you work on Excel. So your Excel skills get refined. That's so nice. That's so nice. Because क्या है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन जो हैं, मतलब I don't want to take out the, but GIP, even the IIT, ये बहुत अच्छी बात है, because at the end you have to go to the corporate culture where you have to use all these softwares, not on the pen paper, on the computer, on the screen and so on. So ये तो अच्छी बात है कि मास्टर्स में तुम्हें इस लेवल पे चीज सिखाई जा रही है, तो तुम लोगों को कितना बेनिफिट अभी जॉब में भी हुआ होगा, और एक अच्छी लर्निंग तुम्हारी जर्नी रही होगी मेरे ख्याल से GIP के साथ. So मतलब ये फर्स्ट सेमेस्टर था, and it did not stop here. In the second semester, we had Ecotrix. So in Ecotrix, we had both. We used to have lectures, but again, we used to work on our studio, everything. TLRM assumption से लेकर आप सब करते हो, and even your जो हमारे internals होते हैं उसके अंदर we were given a list of few topics. So उसके अंदर we were given one of the projects that I remember कि ये एक assignment था, but it could be added to my CV as a project because they gave us data from 1991 and asked us to work on FDI data and all as a internal for Ecotrix, which was purely taught to us on R.
स्टूडियो। सो अब क्या हुआ कि मेरा अगेन आर पहले पढ़ा था, अब इकोट्रिक्स भी पढ़ लिया मैं, आर माई स्किल्स गॉट अपग्रेडेड एंड द बेस्ट सब्जेक्ट कम्स इन सेमेस्टर 3, दैट मैं अपने सब गोखले जूनियर्स को कहती हूँ कि वो आपको बहुत अच्छा हेल्प करता है आगे, दैट इज बिजनेस एनालिटिक्स. ओके. This is one subject that you will find only in, I think, Gokhale. So they have business analytics in which they are just not telling you any theory. They teach you Python, अच्छा. basics of Python, अच्छा. and then they teach you ML. So they teach you machine learning models, and at the end of the course, you do a project. And that project is very important, but because that goes into your CV, and your major interview revolves around that project. So when I was giving my interview, they asked me all data analytics, and I would say that it was all due to the project that I did, because जो वो project देते भी हैं हमको, उसके बाद they check and review it. So they review in the sense कि why did you use this? Why did you not use this? So ये हमारी feedback that I got from my teacher of business analytics, that the entire interview I was able to go through. So in business analytics, Python करते हो और आप machine learning करते हो, उसके अंदर supervised methods सारे कराते हैं और अनसुपरवाइज्ड 2-3 कराते हैं. सो लेकिन आई तो थिंक बहुत ही अच्छा है. मतलब हाँ. मैं तो मतलब जीआई ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट 2011-12 से जीआईपी जा चुके हैं, बट अब मतलब मैं आपसे ही सुन रहा हूँ ये बात कि इतना कुछ जीआईपी में बता रहे हैं. नाउ अ डेज द फ्यूचर इज मशीन लर्निंग, एआई जो भी आने वाला है, आर हो, पाइथन हो, वट एवर सॉफ्टवेयर यू गाइज आर यूजिंग, इसी का टाइम है. एंड मैक्सिमम टाइम बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में क्या होता है, आप जब मास्टर्स कर लेते हो ना, उसके बाद आपको ये सॉफ्टवेयर प्राइवेटली सीखने पड़ते हैं. या तो या कंपनी कहीं से सिखा रही होगी आपको, कोई हायर करके, या आपको प्राइवेट. और अगर कॉलेज ने ही पहले से तुम्हें एक एक्सपर्टीज इसमें दे दी है, तो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू. ऑब्वियसली इन दी प्लेसमेंट तो है ही है, प्लस आपके वर्क कल्चर में भी कितनी ज्यादा हेल्प होने वाली है. मुझे तो लगता है बहुत ही ज्यादा अच्छा रहा होगा, बहुत बिकॉज ज्यादा. व्हेन वी स्टार्ट वर्किंग तो हमसे पूछा, बिकॉज यू विल नो सर कि ये फील्ड डेटा एनालिटिक्स फील्ड में engineers are also there. So when I entered, they were asking us, what do you know? So I'll not again name, but there were few institutions कि जहाँ ये सब कराते भी है, तो शायद थोड़ा थ्योरी में करा दिया था उन लोगों इंजीनियर्स को. को डेटा के साथ खेलना नहीं आता जो ई कॉमर्स वालों को आता है, ये तो मानेगी. क्योंकि वी नो ये स्टैटिस्टिक्स, वी न्यू मतलब लाइक डेफिनेटली नो इकोनोमेट्रिक्स. अब उन्होंने उस लेवल पे वो नहीं पढ़ी जो तुम लोग पढ़ के आए. इकोनॉमिक्स के सारे टेक्निकल फंडामेंटल. थोड़ा स्ट्रांग होता है, बट उनकी स्टोरी टेलिंग हमें ज्यादा अच्छी होती है शायद. हाँ, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो हम्म. मतलब ओवरऑल और प्लेसमेंट जीआईपी से ही हो गई थी Yes, बेसिकली. yes, सो sir. अभी लाइक वेयर आर यू वर्किंग? So I'm in JP Morgan Chase, Bangalore office. I am currently in automation COE team, which is basically there are a lot of reports that you make ओके. manually. ओके. So in my team, we basically automate the entire process. सो इकोनॉमिक्स ऑनर्स के जो कोर बेसिक पेपर थे, स्टैटिस्टिक्स और इकोनोमेट्रिक्स, वो कुछ यूज होते हैं जॉब में? यस सर, होते हैं. मतलब स्टैटिस्टिक्स तो बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज यू एनालाइज थिंग्स, हाउ डू यू नो व्हाट आर यू डूइंग. सो स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स, आई थिंक हम इकोनॉमिक्स वाले बच्चों का स्ट्रेंथ रहता है यहाँ पे. वी नो थिंग्स एंड व्हेन यू एनालाइज, अब जैसे हमारे पास डेटा आ रहा है कंज्यूमर, जेपी मॉर्गन इज अ बैंक, सो जो भी डेटा हाँ आ रहा जी. है, हाउ डू यू हाँ मेक जी. सेंस ऑफ इट. तो तो इट्स मतलब वेरी. ऑलमोस्ट, मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो जूनियर्स हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं, तो वो सिर्फ इस तरीके, मैं इन सबको बोलता है, जूनियर्स को बोलता हूँ, काफी लोग ये वीडियो देख भी रहे होंगे, कि भाई तुम लोग सिर्फ नॉर्मली पास होने के लिए मत पढ़ो, कंसेप्ट समझो. व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट इज या. एस्टिमेशन, व्हाट इज इकोनोमेट्रिक्स, बेसिक्स, डमी वेरिएबल, ये जितने टॉपिक्स हैं इनको इन डेप्थ जाके पढ़ोगे तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, बहुत ज्यादा. इवन तुझे मास्टर्स में भी डेफिनेटली थोड़ी बहुत शायद हमारी याद आई होगी जब तूने इकोनोमेट्रिक्स वगैरह पढ़ी होगी तो. पक्का ही. जितने भी इकोनोमेट्रिक्स के फंड, क्योंकि बेसिक इकोनोमेट्रिक्स ऑब्वियसली चाहे मास्टर्स पे भी स्टार्ट हो, क्योंकि काफी डीएससी के स्टूडेंट जो मुझसे पढ़ते हैं, डीएससी में मैं सेमेस्टर 1 को पढ़ाता हूँ, तो डी इकोनोमेट्रिक्स वही बेसिक वाली ही यूज होती है मैक्सिमम. थोड़ा सा एड ऑन पैनल डेटा हो जाता है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस हो जाती है, टाइम सीरीज हो जाता है, और भी डेफिनेटली मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स हो जाता है, बट बेसिक्स एग्जैक्टली वही रहता है. सो ओवरऑल बेसिकली अभी यू आर वर्किंग एज डेटा एनालिटिस्ट. Yes, sir.
व्हाट सॉफ्टवेयर यू आर यूजिंग ओवर देयर? अभी क्या कर रहे हो? So currently I use Tableau, Alteryx, and SQL. मतलब SQL के there are different environments. I use Teradata Assistant for that. So and Python also. ठीक है, ओके फाइन. सो अंबिका, यू आर विद अस इन मतलब फ्रॉम सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2? सेमेस्टर 1 से One. 1 MM1. 1 2 3 4, हाँ, Yes चारों sir. सेमेस्टर ऑलमोस्ट पढ़े हो. चलो ठीक है, दैट्स गुड. मैंने जीआईपी में, मैं ऐसी जीआईपी को सर्च करा था, तो मैंने वहां पे तेरा इंटरव्यू देखा, मतलब अच्छा. यू वर टॉकिंग अबाउट जीआईपी. सो मैंने कहा यार ये तो अंबिका है, तो मैंने कहा चलो पूछो हाउ इज द लाइफ इज गोइंग ऑन. तो फिर मैंने तुझे रैंडमली इंस्टा पे सर्च किया. आजकल मैं ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि जितने जूनियर्स हैं उनको प्लीज कुछ पता लग जाए कि हाँ भाई, कि इकोनॉमिक्स ऑनर्स में करने के बाद, स्पेशली फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कोई भी कॉलेज हो, मास्टर्स अगर आप अच्छी जगह से करते हैं, नॉट ओनली डीएससी एनआईएस है, इवन द जीआईपी, इवन द आईआईटी, इवन द मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड अदर इंस्टीट्यूट ऑल्सो, अच्छी लाइफ है अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो, है ना? Yes sir. तो कुछ जूनियर्स को एडवाइस देना चाहोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ऐसे लगता है कि जो एक बहुत बड़ा ना डिलेमा मुझे था was कि हाउ डू वी चूज कि हमें कौन सा मास्टर कॉलेज में ही जाना है. तो ये मुझे पता नहीं हाउ मेनी पीपल हैव स्पोकन अबाउट इट, बट मेरा एक ये टेक अवे था कि इट कम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर एंड व्हाट यू वांट टू डू अहेड. मतलब अगर आपको रिसर्च जाना है तो योर चॉइस ऑफ कॉलेज may depend, and also what do you like. If you like core quants, then ISI का कोर्स बहुत अच्छा है. But if you want a mixture, then MSc, Gokhale, IGIDR, they give you a wide range of options to try from. And at the end of the day, if you have that potential to stand out, आप कहीं से भी सेम जगह पहुंच सकते हो. So don't just think if एक कॉलेज नहीं हो पाया, then there's something to. एंड गाइस, आप लोग देख के, अंबिका अभी हमारे बैच के कौन कौन स्टूडेंट हैं? एक तो आप बता रहे थे शायद, जो तुम्हारे साथ पढ़ रहे हैं, जो ग्रेजुएशन में हमारे साथ थे. Sir, Ayushi Pathak, DSC से, she is also in एंड JP. शी इज इन इनटू योर प्रोफाइल ओनली? So मतलब we have different teams, ठीक है, but मतलब with same, she joined with me same. अच्छा, मतलब सेम लेवल पे यू गाइस आर. हाँ, डेटा एनालिस्ट ही है, बट टीम उनकी अलग होगी. हाँ, तो आई थिंक आरुषि भी शायद इसको सुन रही होगी, तो मैं आरुषि, मैं डीएससी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, बट गाइस दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से का बच्चा भी उसी लेवल पे आया है, जीआईपी का बच्चा भी उसी लेवल पे. एट द एंड व्हाट मैटर्स हाउ यू गाइस परफॉर्म इन द कॉलेज. ठीक है, कितनी अच्छी लर्निंग आप लेते हो. हर कॉलेज आपको अच्छे कॉलेज प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा, फॉर श्योर देगा ही देगा. आप, इट्स ऑल अप टू यू हाउ यू कैन ग्रैब इट, किस तरीके से आप ग्रैब कर सकते हो. तो मैं पर्सनली फील करता हूँ अंबिका, मैं मतलब बाकी कोर्सेज के खिलाफ नहीं हूँ, बट अगर इको ऑनर्स और एमए इकोनॉमिक्स अच्छे कॉलेज से कर लिया, तो मुझे पर्सनली लगता है एक अच्छी लाइफ सेट है, एक अच्छी आपको लेटर मिलना शुरू हो जाती है. बिकॉज सीरियसली पता है क्या है, बाकी बच्चे और अदर कोर्सेज जो थोड़े, मतलब मैं बाकी कोर्सेज नहीं, मतलब जैसे बीटेक वाले एमबीए वगैरह करते हैं, तो थोड़े कॉस्टली हो जाते हैं काफी कॉलेज की, बट एक बहुत अच्छा आरओआई मिलता है, मुझे लगता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब अच्छा मिलता है. एक चीप लेवल में, ओके लेवल पे आप मास्टर्स कर ले, तो उसके बाद प्लेसमेंट हो जाती है, फिर तो एंजॉय द लाइफ. तो आई सेम दिस कि मेरे साथ बहुत सारे इंजीनियर्स हैं. वी हैव पीपल फ्रॉम आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, बीआईटी थापर यूनिवर्सिटी. सो दे हैव जॉइन्ड विद अस एंड दे आर engineers, and they have also come from BTech and also BTech MTech courses. So we are at the same place as they are also. तो बस इससे बढ़िया बात क्या है, बस फिर एडिशनल चीजें बहुत करनी पड़ती है. मेरा एडवाइस रहेगा कि आप लोग ज्यादा के पीछे मत भागना, बट आप अपना एक्सेल और पाइथन या आर में से एक चीज और सीक्वल अगर कर लोगे, तो आई थिंक यू विल गेट इनटू एनी कंपनी यू सिट फॉर. बट बेसिकली ये सब चीजें करना, मेरे को जो पर्सनली फील होता है कि नॉट इन द ग्रेजुएशन लेवल बट मास्टर्स लेवल पे फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर पे करे तो ज्यादा सही रहेगा, बिकॉज उस टाइम पे याद भी रहता है. ग्रेजुएशन में कर लो, मतलब बेसिक्स करना है, कुछ हायर लेवल में एमएल वेमएल पढ़ने मत बैठ जाना. बट मास्टर्स लेवल पे जब आप काम करोगे, अगर आप इकोट्रिक्स पढ़ ही रहे हो, तो आप उसे पाइथन में भी कर सकते हो, आप उसे आर में भी कर सकते हो रिग्रेशन को. बाकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो कि इकोनोमेट्रिक जब सेम 4 में बच्चों को पढ़ाते हैं, तो उन्हें प्रोजेक्ट देते हैं.
वेंकी में था, वेंकी में है, बिल्कुल तुम्हें तो वेंकी में तो लास्ट आपको स्टार्टा में एडवांस इकोट्रिक्स होती है ना सर, वो हमने पढ़ी है ऐसे, वो हाँ मुझे स्टार्टा पता है, में पढ़ी। वेंकी में भी मिलता है इवन, मतलब हर कॉलेज में, मैक्सिमम कॉलेज में, आर्यभट्टा वालों को भी मिला था, बाकी हिंदू हंसराज एसआरसीसी वालों को मिलता है। ऑलमोस्ट काफी टीचर्स प्रोजेक्ट देते हैं कि पता लगे भाई इकोनोमेट्रिक्स रियल लाइफ सिनेरियो में किस तरीके से यूज होती है। यस सर। ठीक है अंबिका, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, तूने टाइम दिया, और आई होप गाइस आप लोग के काफी डाउट जीआईपी को लेकर क्लियर हो गए हो। अंबिका, मेरी एक छोटी सी सिर्फ रिक्वेस्ट तेरे से ये है कि ये वीडियो यूट्यूब पे डलेगा, ठीक है, और एक हफ्ते में कभी भी तेरे पास 1 मिनट का टाइम हो, देख लियो, अगर किसी बच्चे ने कोई कमेंट मांगा हो, मतलब कुछ पूछना चाहता हो जो ऑब्वियसली मैं आंसरेबल नहीं हूँ, तो ही आंसरेबल होगी, सो मतलब यू जस्ट नीड टू आंसर टू जूनियर्स एंड दी whosoever is want to pursue the masters from GIP, ठीक है। 100% श्योर सर, दे कैन रीच मी ऑन लिंक्डइन ऑल्सो, तो जो भी ठीक है, डाउट्स हो। लिंक्डइन पे भी आप रीच कर सकते हो अंबिका को, अंबिका आनंद से आप मिल जाएगी अंबिका तुम्हारे नाम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच अंबिका। Thank you so much, sir. And also thank you so much for all the lessons you taught. Thank you. ओके अंबिका।